नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन सिंह कश्यप और मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेरी वाट लग गई शो में। आप सबको पता है कि मेरी वाट लग गई शो क्या है। हम किसी की वाट नहीं लगाते, हम अपने गेस्ट की वाट नहीं लगाते और हम उन्हें मतलब खुद की भी वाट नहीं लगाते, हम सिर्फ जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ में मिस्टर रोहन सुनार, मैं स्वागत करता हूँ मिस्टर रोहन सुनार का। ये बेसिकली ही द फोटोग्राफर और बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है। आज हम इनके साथ में हैं इनके एग्जीबिशन में। तो आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं इनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में और कुछ इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मिस्टर रोहन प्लीज सर। मेरा नाम रोहन सुनार है, जीजे स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट हूँ। ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, फिर MA इन इंडोलॉजी किया हुआ है। जी, इंडोलॉजी इज ऑल अबाउट न्यूमिस्मैटिक्स, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री। सर इस चीज़ का बोर्ड मत बताइए, एक्चुअली इंडोलॉजी भाई मेरी वाट लग जाएगी सर। आपको पता है। हाँ जी, सो फोटोग्राफी और पिक्चर दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ में है। जी। जब पेंटिंग्स करना स्टार्ट किया उसके बाद में फोटोग्राफी की नीड ज़्यादा लगने लगी, ताकि वो जो विजन है वो एक फ्रेम है जी, वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं डेवलप कर सकता हूँ। जी। और पेंटिंग तो डेफिनेटली थॉटफुल प्रोसेस है जो एक दिन में एक रात में नहीं चलते बनता, जो एक प्रोसेस के हिसाब से काफ़ी साल काफ़ी महीने चलते रहते हैं। तो मैं कई बार If you sorry to interrupt you. If you are comfortable in English, so you can speak in English. मैं हिंदी थोड़ा बहुत बोलूँगा। चलेगा, So please. So painting is a process, so it's not gonna be in a one night or one day, but Yes. it's a process of 1 month. So I really work in steps. Okay. So sometimes I feel like 4 days, someday I will make a break for 1 day, then I think more, Okay. where I could just keep it more like emphatic words or emphatic forms in the pictures. Okay. But this is all about photography, so it's a glimpse of everything Okay. in India within. So in India there are many states, so different culture for each states, then different ambience with nature, with animals, then different peoples, because their behaviors are different. Okay. India, that is experiences when I traveled a lot in India, different Romeo places where I got to see different culture. So not only about they are restricted to one state, that is Maharashtra or Gujarat or Madhya Pradesh, Right. but it's all about different culture and differentiation between nature. Like I like the Madhya Pradesh nature because you just see their sunrise and sunset, beautiful. Okay. And peoples of Rajasthan, they are really, I could say, interactive to each other. They really help you between wherever you need. And definitely, there's a lot of different colors from Rajasthan, different monuments from Rajasthan. Then if you go in Kashmir area, then vast nature. With cold, with the weather, but still you could see different monuments about your different Vishnu temples, then Mahatma temple, then you go mountains, you go for trekking. It's a very beautiful experience. Okay. Mr. Rohan, I'm so sorry. As a artist होने के नाते, as a photographer होने के नाते, आपके नज़र में photographs की meaning क्या है? Photography. What is the meaning of photograph? Yes. Photography मेरे लिए this is like meaning of memory. Not a photography. Yes, photograph. Yes. Photograph. It's a memory basically. When I take a photograph, it becomes a memory. Now there are many photographs in this exhibition. They are not existing now. Okay. I taken into a little wrong place, but right now they are beautiful. That's why it's a memory. So they are beautiful. That's why I take. But many times people think that it's only memory, or it's only a sunset, or it's only a lake. Why we should take a photograph? But if you take it with a different angle, then it really looks beautiful. Okay. So for me, photography becomes a memory, it becomes your history, and always we keep our history alive. Okay. So sir, finally आप सिर्फ photography में इतने strong है तो मतलब कि आप मेरी बात तो लगाएंगे लगाएंगे। So just जो मैं ये कहना चाह रहा था कि what is the meaning of sir रोहन आपकी नज़र में art क्या है? मेरे लिए आर्ट ये एक अंदर का पैशन है जो हम लोग कैनवस पे आज ये कैनवस पे प्रिंट कर मैं कैनवस पे ले सकता हूँ, मैं फोटोग्राफी के नज़रिए से लोगों को कैप्चर कर सकता हूँ, राइट। तो ये आर्ट मेरे लिए लोगों से जुड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके, जो मुझे भी पसंद है और मैं लोगों के लिए भी उतना काम करता हूँ। ओके। एज ए फोटोग्राफर, इफ सपोज कि मुझे फोटोग्राफर या फिर एक न्यू कमर है उसको फोटोग्राफी लाइन करना, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे जैसे आप मेरे गेस्ट हो वैसे ही बहुत सारे गेस्ट होते हैं। हमारा टारगेट वो ऑडियंस है जो कि इसी आदि पे हो, चाहे टीनेजर हो चाहे वो प्रोफेशनल कुछ भी हो, हम हर मुद्दों पे बात करते हैं। तो कुछ लोगों के ऐसे जो मैं थॉट है मतलब कि सर मैं शुरू तो करना चाहता हूँ बट मैं शुरू कहाँ से करूँ?
फोटोग्राफी शुरू तो करना चाहता हूँ, डांसिंग शुरू तो करना चाहता हूँ, पेंटिंग शुरू करूँ तो कहाँ से करूँ? तो आप फोटोग्राफर्स बन गया तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे जहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं? ये फोटोग्राफी या फिर कोई भी आर्ट ये एक आपके अंदर एक तरीके का एक ज्वालामुखी है जी। Unless it is within you, then only you can come it out. ओके राइट। If you take a canvas or if you take a photography, it's really beautiful when you start with the body. ओके आपके पास मटेरियल होगा, डेफिनेटली आप स्टार्ट करेंगे, मगर आपकी जो विजन है, दृष्टिकोण आप जो रखते हैं, हम लोग उसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब आज एग्जीबिशन करने का मेरा वो मोटिवेशन और एक एम यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के हम लोग उनके दृष्टिकोण चेंज करें। बिकॉज इफ यू स्टार्ट पेंटिंग ऑल्सो यू स्टार्ट इमेजिनिंग। Yes, so whoever a newcomer, I really want to suggest them, you change your vision, you change your dristikon, and then only you start something different, which is not done by anyone. So it's the same apply to photography also. Try to capture which is something new, which is unique than anything. And anyhow we have a beautiful tool, this Google, जो कि क्लिक करे और काफ़ी सारे रेफरेंस आ जाते हैं। ओके सर, एक और क्वेश्चन है, मतलब कि इंसान जब धरती पे पैदा होता है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको ये पता नहीं होता कि वो बनेगा। मुझे नहीं पता था कि सर मेरी बात करती शो का होस्ट होऊंगा। सही। शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आप एज ए फोटोग्राफर होंगे। Yes. सर वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो फोटोग्राफर ही बनेगा या फिर वो एक्टर ही बनेगा, वो डांसर ही बनेगा? वो कैसे पता चलेगा सर, आपको कैसे पता चलेगा? मेरे तरीके से आपने देखा जाए तो मैंने एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करने की कोशिश की। जैसे मैंने 10th हुआ खास करके 10th के बाद में मैंने बहुत सारे डिप्लोमा की कोर्सेज स्टार्ट करने की कोशिश की, मैं इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, फिर मैंने कोई और फैकल्टी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर मुझसे नहीं हुआ। आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ इयर्स, बट व्हेन आई चोजन माय ट्रैक आई वाज रियली इनटू इट। अनटिल आपका पूरा डेडिकेशन वो चीज़ के लिए नहीं हो तो आप कोई भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो कैसे होता है कि बहुत बार हम लोग मेहनत स्टार्ट करते हैं मगर वो कंसिस्टेंसी नहीं होती, हम लोग को बहुत सारे स्ट्रगल भी करना पड़ता है उसके लिए। मतलब आर्ट इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, एंड आर्टिस्ट कैन नॉट बी मेड एन आर्टिस्ट इन वन नाइट। The struggle is a process of many years. So unless you make the struggle, then only you can become something. थैंक यू सो मच सर। और लास्ट सर, योर राइट। Yes. ओके In terms of that, कि मेरी कला ही मेरी सहचारिणी है सब। ओके, सो आपकी जो वाइफ है, मतलब मेरी भाभी जी लगेंगी, तो वो क्या हाउस वाइफ है? हाँ। ओके, सो यू आर सेटिस्फाइड विद योर हाउस वाइफ? इट्स जस्ट अ पर्सनल क्वेश्चन। ओके, यू हैव किड आल्सो? No. नो सर, मैरिज के कितने साल हो गए? नहीं अभी तक तो साथ में हूँ। हमें नहीं वो तो मेरे साथ में कैसे बोले कि कंटिन्यूएशन मेरे साथ में ही है। ओके ओके, मतलब कि एक सालों से साथ क्या जीवन संगी है? हाँ जीवन संगी। सर ये कैसे पता चलता है कि यही मेरी वाइफ? मतलब सपोज कि मैं किसी लड़की को देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि सबके साथ में आते हैं, लड़कियों के पास भी आते हैं, फोटोज आते हैं, तो वो कैसे पता चलता है कि सर कि हाँ यही मेरा जीवन संगी या फिर जीवन साथी हो? जैसे कि आप शादीशुदा हैं तो आपको नहीं बोल सकते ऐसे कि हम लोग जब तक वो चीज़ को पाने की कोशिश करें, जैसे हम लोग कभी बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, तो बात करने से बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती है। कई बार हम लोग सहवास रहते हैं साथ में, जैसे कि हम लोग 1 महीना रहे साथ में, या फिर हम लोग बात करने की कोशिश करें, एक दूसरे के गुण फिर विचार जानने की कोशिश करें, राइट, तो वो ज़्यादा शायद ईजी हो जाता है सब चीज़। राइट, तो ये क्लियर हो जाता है कि मतलब कि हाँ हाँ तो डेफिनेटली राइट नाउ यू आर क्लियर कि मतलब कि हाँ यही मेरी जीवन साथी यस। है। ऐसा होता है कि nobody is perfect for me, nobody is perfect in the world, but we try to make things perfect, so सब बैलेंस हो जाता है। ओके, सो कॉलेज टाइम में जब आप थे तब थे मौज मस्ती किया, ये किया वो किया, प्लान निकाला, आज जो है वो बिल्कुल क्लियर है। मेरे लिए ये पूरी जर्नी है जो एंडलेस है। ओके, वो आज मैं कभी ऐसा बोल नहीं सकता हूँ कि मैं सेटल हो गया या फिर मैं क्लियर हो गया या फिर मैं कोई ये करना था मैं हासिल कर लूँ। जी, इट्स अ जर्नी। मतलब मैं आज भी बोल सकता हूँ कि जो करना था मैं हासिल नहीं कर पाया, बट आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग दैट। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन कि एक जीवन साथी होने का सबसे बड़ा सबूत या दोनों में एक ऐसा गुण क्या होना चाहिए जिसकी वजह से बिल्कुल हाँ ये फ्रीज रहे कि मतलब कि हाँ यही दोनों हैं कपल, यही मेरे साथ में और जिंदगी भर यही मेरे साथ में। वो एक दूसरे का बैलेंस होना चाहिए, जो आप कामयाब होने की कोशिश करेंगे, यही अच्छा होना चाहिए फिर ये बुरा होना चाहिए। जैसे एक आर्ट होती है वो अच्छी बुरी नहीं होता है,
राइट। तो वो उस जगह के लिए अच्छी बनी होती है या फिर उस जगह के लिए नहीं बनी होती है, तो हम लोग को वो जो चीज़ बनी होती है उसी को शायद ट्राई करें तो वो बहुत अच्छा होता है। सर यू आर हैप्पी विद मोदी सरकार? इन टर्म्स ऑफ यस, बिकॉज मतलब मैं जैसे बोल सकता हूँ गवर्नमेंट को, तो उनके पास कुछ अच्छे गुण भी हैं जो आप देख सकते हैं, आज जो काम कर रहे हैं, और कुछ बहुत लिमिटेशन भी आ जाती है जिनके वैसे उनको काम करना है वो नहीं करना है, तो शायद मैं बोल सकता हूँ कि विच इज़ गोइंग ऑन दिस लिए ओके सर, रोहन जी थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातें करके। आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया, कुछ मेरे जो जहन में सवाल थे, ये मेरे जहन के सवाल नहीं थे, ये मेरे गेस्ट के सवाल हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मेरे से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता, तो मैं उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आपको समझ में आया होगा सर मेरी बात लगती है क्या? एक्चुअली लगती मेरी ही बात है, बस शो का नाम शुरू करता है। तो रोहन जी अभी फिर हम आपसे बैठेंगे, बात करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो देखा सर आप सबने ये रोहन सुनार यस। तो देखा आप सबने रोहन सुनार जी को, ये थे, और बेसिकली ही इज अ फोटोग्राफर, ही इज अ गुड फोटोग्राफर। मैं इनकी एग्जीबिशन में हूँ, मेरी वाट लगती शो को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप सब प्लीज इसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पास कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं फिर से हाजिर होऊंगा आर्यन सिंह कश्यप किसी और गेस्ट के साथ में, उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आप सबको हम उनसे रिलेट कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर।